Hello and welcome to Topic Talk. Today, in this video, we are going to target 50 MCQs of Chapter 1 Indian Economy on the Eve of Independence to revise the entire chapter. So, let's revise the chapter. So, I have gathered the MCQs from different books and different sources, and these are complete 50 MCQs to help us revise the entire chapter. So, the first question is the main reason for stagnation in agriculture sector during British rule was land settlement system, lack of technology, deindustrialization, or commercialization of agriculture. So, what was the main reason of stagnation in agriculture sector? We have covered this in the reasons for stagnation in agriculture sector video. If you are new to the channel, then you can check out the video and then you can come here and answer the question. So the answer is land settlement system because this is the system जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्सप्लोटेशन हुआ था, सबसे ज़्यादा फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो खराब हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1891, 1921, 1781 or 1881. This we have covered in the last video. In the previous video we have recently completed in this series and the answer is 1881. And we all know that कि हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है. So the next question is the export surplus during the British rule was used to make payments for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, to meet expenses on war fought by the British government, to import invisible trades, or all of these. And we have covered this in the video of foreign trade and the answer is all of these. इन सारे ही रीजंस की वजह से हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सरप्लस हमारा फॉरेन ट्रेड का यूज कर रही थी इन सारे खर्चों के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट इन. बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था जिससे कि ब्रिटिश एम्पायर जो था उसकी फाउंडेशन इंडिया में और ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी. एंड द आंसर इज 1757. दिस आई हैव कवर्ड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज. Go and check out if you haven't checked the first part. Next is which industry received the major setback during the colonial rule? Cement, handicraft, paper, iron and steel. सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था? We have covered this in the industrial sector video. The industry was handicraft industry. Next question is India's jute industry suffered heavily due to dash after partition. पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र कहाँ करना पड़ा था इंडियन इंडस्ट्री को? लैक ऑफ रॉ मटेरियल, फेमाइंस, अर्थक्वेक, नन ऑफ दीज. रॉ मटेरियल हमारा चला गया था पार्टीशन के टाइम पे कुछ पाकिस्तान के पास. और कौन कौन सा था वो? जूट एंड हमारा जूट का मेजर पोर्शन वहाँ चला गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर पोर्शन वहाँ चला गया था. सो वी सफर्ड इन लैक ऑफ रॉ मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज British rule introduced railways in India in the year 1849, 1850, 1851, 1852. ये तो हमने अभी प्रीवियस रिसेंट वीडियो में कवर किया है. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1850. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू चाइना, ब्रिटेन, कोरिया, श्रीलंका. हमने ये भी कवर किया था फॉरेन सेक्टर के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर, कि हाफ ऑफ द ट्रेड जो है हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू मासिव अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, बोथ ए एंड बी और नीदर ए और बी. द आंसर इज बोथ ए एंड बी. ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब खराब हो गई थी तो लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए थे और ज़्यादातर हम किसके ऊपर डिपेंड हो रहे थे? फिनिश गुड्स के ऊपर जो हम इम्पोर्ट करते थे ब्रिटेन से. नेक्स्ट इज which industry was adversely affected due to partition? सिल्क, कॉटन, जूट और नायलॉन. हमारा मेजर पोर्शन जूट का चला गया था पाकिस्तान में. सो द करेक्ट आंसर इज जूट.
Next is, which of the following statements is false in the context of industrial sector during British rule? There was decline in handicraft industries. The British government promoted capital goods industries. India became an exporter of primary products. There was low contribution to of industries to GDP. इसमें से कौन सा सही नहीं है? फॉल्स बताना है हमें। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ था? हाँ हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रमोट की थी, ऐसा कुछ था? बल्कि उन्होंने तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और खराब कर दिया था। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर, हाँ हम एक्सपोर्टर बन गए इंपोर्टर से। देयर वाज लो कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन लो था जीडीपी में, ये बात भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिशर्स नेवर प्रमोटेड एनीथिंग इन इंडिया। Next is, identify the statement which is true in the context of demographic condition of India during British rule. इनमें से क्या सही है? डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी? हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई लिटरेसी रेट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है ये बताना है। लिटरेसी रेट ज़्यादा था, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया, लिटरेसी रेट तो बहुत कम था, 16% था। लो डेथ रेट था, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। हाई बर्थ रेट, यस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमने देखा था, IMR, ये भी बहुत ज़्यादा था। सो द करेक्ट आंसर इज हाई बर्थ रेट। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज। क्या कंडीशन थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड की? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल एक्सपोर्टर बन गए थे हम रॉ मटेरियल के। सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज स्पेंट ऑन वॉर एक्सपेंसेस, जितना भी हमें फॉरेन ट्रेड का सरप्लस होता था वो ब्रिटिशर जो है अपने वॉर एक्सपेंसेस में यूज कर लेते थे, ठीक बात है। इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, हम इंपोर्टर बन चुके थे, जो ब्रिटिश गुड्स अपनी इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करते थे वही ला के इंडिया में वो सेल कर देते थे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस India's demographic condition was characterized by the following. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कैरेक्टराइज करता है वो बताना है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो मोर्टेलिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, 32 ईयर्स थी, बहुत कम थी। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी पहले ही हमने देखा 16% थी, ये तो कम था, ये तो गलत हो गया। हाई मोर्टेलिटी रेट आगे तो पढ़ना ही नहीं है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाई IMR, IMR हमारा ज़्यादा था, सही है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टेलिटी रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, फ्रॉम 1881 onwards सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। कितने साल बाद होने लगा? ये तो मैंने अभी इसी वीडियो में बता दिया था आंसर, सेंसस के क्वेश्चन को बताते हैं। ये वाला आंसर आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज, द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज। मेन रीजन क्या था कि जिससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खराब हुई थी, बर्बाद की थी ब्रिटिशर्स ने? फर्स्ट इज, हैवी टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर उन्होंने हैवी टैरिफ लगाया था, सही बात है। हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जब हम अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करते थे, सेल करना चाहते थे, तो उन्होंने हैवी ड्यूटी लगाई थी। ये हमने किया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर। याद करो, उसमें था कि वैल्यू जो थी हमारे गुड्स की वो बढ़ जाती थी, जिससे उनकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस चली गई थी, सॉरी। ये हमने किया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट इज, हैवी टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जब गुड्स आते थे इम्पोर्ट करके, जो उनके गुड्स थे उनके ऊपर उन्होंने कोई टैरिफ लगाया था? नहीं लगाया था। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज, डैश सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा सेक्टर ऐसा था जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट था, जिसका डोमिनेंट रोल था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर? मतलब जहाँ हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा इंडल्ज थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था सबसे ज़्यादा कहाँ थी? 72% इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज, फर्स्ट ट्रेन ऑन इंडियन सॉइल वाज रन ऑन 1853 बिटवीन।
पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ये मिस हो गया, वीडियो के अंदर ये नहीं था, सिर्फ वीडियो में मैंने डाला था कि इंट्रोडक्शन कब हुआ, 1850। बॉम्बे टू थाने, थाने टू बॉम्बे, बॉम्बे टू सूरत, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट इज इंडिया entered the dash stage of demographic transition after year 1921। 1921 के बाद कौन सी स्टेज आई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जिसकी वजह से 1921 को हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले 1921 से पहले कौन सी स्टेज थी हमारी, फर्स्ट स्टेज, और इसके बाद कौन सी आई थी, सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज करेक्ट, ये बताना है इसमें से सही कौन सा है। सुएज कैनाल वॉज ओपन इन 1769। 1769 में सुएज कैनाल ओपन हुई थी। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन ईयर 1801। ये तो अभी हमने किया है, ये तो सही है, 1881 में ही हुआ था। टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1807। किसको, व्हाट वाज टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1747। 1747 में हुआ था कि 1757 में हुआ था, या कोई और दूसरा ईयर था। इसमें से एक बात तो है जो बिल्कुल गलत है, स्विस कैनाल 1769 में ओपन नहीं हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज, हमें बताना ही कौन सा था, ये तो गलत हो गया। लेकिन ये हमने अभी भी देखा 1881 में ही फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, और हमें बताना क्या है, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये आप बताओगे स्विस कैनाल कब ओपन हुई थी, इन विच ईयर। नेक्स्ट इज commercialization of agriculture resulted in shifting of agricultural production from dash crops to dash crops। कौन सी क्रॉप से कौन सी क्रॉप्स उगाने लगे थे हमारे फार्मर्स जब कमर्शलाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का। फूड क्रॉप्स उगाते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। उसके बाद कमर्शलाइजेशन हुआ तो फिर कैश को क्रॉप उगाने लगे, ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती उनसे ही कराया था। तो क्या हुआ, फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट इज arrange the following events in chronological order in context of Indian economy and choose correct alternative। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, पहली ट्रेन जो बॉम्बे से थाने चली थी सबसे पहले ये हुआ था। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, या फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया था, अभी हमने देखा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है, 1921। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881। और बॉम्बे टू थाने वाली जो ट्रेन थी वो अभी हमने देखा 1853 में। नाउ यू विल टेल मी द करेक्ट ऑर्डर। सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, ये अब आपको सिर्फ ऑर्डर बताना है। सो आप बताओगे इसमें से ऑप्शन कौन सा, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर ऑफ। हम किस चीज़ के एक्सपोर्टर थे जब हमारा, मतलब जब हम आज़ाद हुए थे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा चैप्टर है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा, हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। यही तो किया था ब्रिटिशर्स ने। हम पहले एक्सपोर्टर थे, पर उन्होंने हमें बना क्या दिया था, इंपोर्टर। नेक्स्ट इज डैश मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कौन से मेथड को बोलते हैं जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं बेचने के लिए, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट बताना, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, ठीक है। कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये तो फर्स्ट लाइन ही थी जो हमने कवर की थी इंडियाज फॉरेन ट्रेड के अंदर। अगला है इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेवरेबली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, फेवरेबली, अच्छा। कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज लिबरल पॉलिसीज, लिबरल पॉलिसीज थी उनकी, ये तो यहीं पर गलत हो गया। पॉलिसीज कैसी थी, सारी की सारी रेस्ट्रिक्टिव थी, इसको तो पढ़ना ही नहीं आगे। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेवरेबली, फिर से फेवरेबली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, सेम ही है ये भी और ये भी। फेवर किया था उनकी पॉलिसीज ने हमें, या अनफेवर किया था, अनफेवर किया था, हमारे फेवर में तो थी ही नहीं। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज
Statement number first, option number A. Next is the backwardness in agricultural sector prior to India's independence was mainly due to. इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बैकवर्डनेस थी वो क्यों थी? सबसिस्टेंस फार्मिंग की वजह से, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, जमींदारी सिस्टम की वजह से, या लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी? प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस क्या चल रहा था? ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? जमींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाउनफॉल में गया था, बैकवर्ड हो गया था. सो द करेक्ट आंसर इज जमींदारी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द 20th century अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस. ठीक बात है, एक्सपोर्ट सरप्लस हमें हुआ था. देयर वॉज दिस सरप्लस यूज, ये सरप्लस यूज हुआ कहाँ था? पर टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बिल्कुल भी नहीं. इन्वेस्टमेंट तो ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था उन्होंने. टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, अपनी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया था. टू मीट द ऑफिशियल एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश. टू पे द सैलरीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी दे देंगे तो इतने अच्छे तो नहीं थे ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने क्या किया था? जितने खर्चे थे वो अपने यूज करते थे. और ये क्वेश्चन तो अभी आया भी था इसी वीडियो में, इसी में हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था. टू मीट द ऑफिशियल एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश. Next is, the colonial government made no sincere attempt to estimate India's national and per capita income, but most studies found that India's national income growth in the pre-independence era was dash and per capita growth was. ये फर्स्ट वीडियो में हमने किया है, द वेरी फर्स्ट वीडियो, द पार्ट 1, जिसके अंदर हमने ये देखा था ब्रिटिशर्स ने तो कोई अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हमारे खुद के थे इंडिया के जिन्होंने अटेम्प्ट किया था और उनके रिजल्ट थोड़े अलग अलग थे. तो उसमें से एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनके रिजल्ट को हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं. तो उन्होंने क्या दिखाया, उनका रिजल्ट से क्या पता चला था कि हमारा प्री इंडिपेंडेंस में जो ग्रोथ थी नेशनल इनकम की वो लेस देन 2% थी, और पर कैपिटा इनकम से जो हमारी ग्रोथ थी वो 0.5%, मतलब क्लोज टू 0.5%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज, अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट the zamindars dues to the state were fixed. What did this mean for the cultivator? जमींदार को तो फिक्स्ड अमाउंट ही देनी होती थी, ये हमने पढ़ा था जमींदारी सिस्टम के अंदर. तो इसमें से बताना है कि इसका मतलब क्या था. दे रिसीव इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन. क्या जमींदार्स को कोई सपोर्ट मिलता था कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके प्रोडक्शन के अंदर? नहीं. दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस. क्या जमींदार्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, या फिर वो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था फसल कैसी हुई है नहीं, बस उनको फोर्स करते थे रेंट पे करो. दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. दे वर फोर्स्ड टू शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स लीडिंग टू फूड स्कैरसिटी. अब अगर हम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कल्टिवेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जमींदार्स को तो फिक्स अमाउंट देना था, लेकिन फिर भी वो रेंट पे करने के लिए ज़बरदस्ती करते थे. किसके साथ? कल्टिवेटर्स के साथ. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था हमारे फार्मर्स को, कल्टिवेटर्स को पे करने के लिए रेंट, चाहे उनकी फसल अच्छी थी या नहीं थी. नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिड द ब्रिटिश राज इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल ने किस तरह से किया था? The British made India an exporter of cotton from an exporter of cloth that led to large-scale unemployment. Okay. The establishment of railways by the British provide short-term employment for many Indians. The British expanded their army with Indian spoils and fought in wars overseas. ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मतलब ये तो रेलिवेंट ही नहीं है. The British provided tax concession to rural farmers and landless laborers. ये कैसी बात करती कि टैक्स कंसेशन दिया, वो तो एक्सप्लॉइट करते थे. ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये तो ऑप्शन ही आउट ऑफ सिलेबस है, इसको तो कंसिडर ही नहीं करना. सो ब्रिटिश राज ने या ब्रिटिश रूल ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे किया था? उन्होंने क्या किया, वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके चले गए और फिर वही सामान बना के हमको ही बेचने लगे, फिनिश गुड्स. तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने कैसे किया था? हमारे यहाँ से गुड्स ले जाके, कौन से वाले? रॉ मटेरियल वाले, और फिर फिनिश गुड्स हमें दे के लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करके, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर आया था, फेस करना पड़ा था.
नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? साइज ऑफ लेबर फोर्स इन कंट्री, number of people living in a country, distribution of workforce among different sectors of an economy, nature of different occupations. Obviously जो हमारी वर्क फोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अलग अलग सेक्टर्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज prior to India's independence, stagnation in agriculture sector was mainly caused by. मेन रीजन क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन का? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये इसका आंसर आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फिर से वही ऑर्डर बताना है, सेम क्वेश्चन है. ईयर्स 20 के मैंने बता दिए, ये भी आप आंसर करोगे इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. किसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा भुखमरी आती थी ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया में? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, जमींदारी सिस्टम, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसिस्टेंस फार्मिंग से क्या हो गया था? कैश क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाने लगे थे, तो खाने के लिए तो कोई फार्मिंग करता ही नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? फैमाइन आने शुरू हो गई. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देयर वाज हाई बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडिया. सही बात है. इंडिया वाज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. सही बात है. द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज लो इन इंडिया. ये बात कुछ सही नहीं है. India became an exporter of finished consumer goods and an importer of primary products. So, इसमें से करेक्ट क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, और दूसरा बोल दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर. बात तो दोनों सही है. आगे के ऑप्शन भी देखते हैं. सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, और थर्ड एंड फोर्थ. Which of the following is not the सॉरी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा. नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? IMR के बारे में जो बात बोली गई है बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल भी सच नहीं है इसके अंदर. तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक में तो थर्ड ऑप्शन जहाँ दिखे वहीं पे आंसर लगा दो. और फोर्थ वाला क्या है? इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स. अच्छा, हम एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स? बिल्कुल भी नहीं. नेक्स्ट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इकोनॉमी वॉज. इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस. सब कुछ ही थी पूरी तरह से बर्बाद, खराब, खत्म. सो नाउ दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम अनदर रिसोर्स, अनदर बुक. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंपनी, टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड टू द इंटीरियर्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना था उन्हें. इंटरेस्ट से उन्हें कोई लेना देना नहीं था इंडियंस के. इंडस्ट्रियलाइज उन्हें तो करना ही नहीं, तो उन्होंने तो डी इंडस्ट्रियलाइज किया था हमारे कंट्री को. सो द करेक्ट आंसर इज ताकि उनके गुड्स जो है इंटीरियर्स तक चले जाएं. बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द डैश ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. जो क्वेश्चन आया था उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें पूछा था आफ्टर 1921, इसमें पूछा बिफोर 1921. दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन. कब एस्टेब्लिश हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1907. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अबाउट डैश परसेंट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन ऑब्टेन लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था 72.7%. सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी, 72%. नेक्स्ट इज व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस अंडरटेकन. फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सही बात है. इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. एडुकेट एफर्ट्स वर मेड बाय द कॉलोनियल रेजिमी टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. नहीं नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस बोल दिया ऑप्शन. नेक्स्ट इज नन ऑफ दिस. सही कौन सा है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटेन का.
So the correct answer is option number A. Next is Suez Canal was opened in. कब हुई थी ओपन? वैसे तो ये मैंने होमवर्क दिया था, वैसे तो मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, पीछे प्रीवियसली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फिर से रिपीट हो गया, बट स्टिल द आंसर इज 1869. Questions from T.R. Jain and B.K. Ori book. So the first question is, during the British rule, India's foreign trade had various features except. इनमें से क्या फीचर नहीं है? Restrictive policies of commodity production, trade and tariff. Okay, it was a feature. British monopoly control over India's export and import. It is true. Free trade from India to rest of world. Large export surplus. Surplus तो था. Free trade नहीं था. हमारा आधे से ज़्यादा ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड था ब्रिटेन के साथ और बचा हुआ चाइना, श्रीलंका एंड ईरान. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज, अंडर द ब्रिटिश रूल, commercialization of agriculture resulted in shifting of agricultural production from dash crops to dash crop. कमर्शलाइजेशन के अंदर क्या शिफ्ट आया था क्रॉप के अंदर? फूड क्रॉप से अब क्या क्रॉप्स का कल्टीवेशन होने लगा था? कैश क्रॉप्स का. सो द करेक्ट आंसर इज option number C, food crops to cash crops. Next is, Britain maintained a monopoly control over India's export and import, while the rest was allowed with a few other countries like. हमारा 50% से ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ था और बचा हुआ कुछ कंट्रीज के साथ था. कौन कौन सी कंट्रीज थी वो? चाइना, श्रीलंका एंड ईरान. सो इसमें से करेक्ट आंसर बताना क्या था कि कौन सी कंट्रीज थी वो? तीनों ही कंट्रीज थी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द colonial rule? India suffered from large trade deficit. Restrictive policies of commodity production were followed. C. Britain maintained a monopoly control over India's export and import. Yes, monopoly control था. D. India became an exporter of primary products and an importer of finished consumer goods. Yes, it is also true. हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा, लार्ज ट्रेड सरप्लस था, डेफिसिट नहीं था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा है नॉट ट्रू. नेक्स्ट इज, इन 1951 एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल इनकम वॉज. एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की नेशनल इनकम में कैसा था? हाईएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स. तीन सेक्टर कौन से? प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. ये हमने कवर किया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज. नेक्स्ट इज, लोएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स. सबसे कम था तीनों सेक्टर में. लोअर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर से कम था. इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. लोअर देन सर्विस सेक्टर. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? प्राइमरी सेक्टर का, जो कि था 70.2%. और वो 70.2% भी, वो कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से ही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते थे. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, हाईएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स. नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू. स्टैग्नेशन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्यों आया था? सॉरी, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर. फर्स्ट इज डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट्स. हैंडीक्राफ्ट्स तो हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, और यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चर की. सेकेंड इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. इट इज रिलेटेड टू फॉरेन सेक्टर. नेक्स्ट इज लैंड सेटलमेंट. लैंड सेटलमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर के अंदर. फोर्थ इज डी, ऑप्शन नंबर डी, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. ये हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन है. सो द करेक्ट आंसर इज लैंड सेटलमेंट. और ये हमने देखा भी था एग्रीकल्चर के अंदर, जब हमने मेन रीज़न कवर किया था पार्ट 2 के अंदर, मेन रीज़न ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके अंदर सबसे मेन रीज़न था लैंड सेटलमेंट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसमें से एडवर्स इम्पैक्ट किससे पता चलता है ब्रिटिश रूल का? ऑप्शन नंबर ए,
Introduction of communication network in India. Change in composition of India's foreign trade. Introduction of modern administrative system in India. और introduction of railways in India. Adverse impact था चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, क्योंकि इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या कर रहा था, सरप्लस जनरेट कर रहा था रूल के अंदर, तो मतलब फायदा था एक तरह से, लेकिन वो अलग बात है, वो फायदा भी इन फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ जो है उन्होंने हमारे लिए नेगेटिव बना दिया, बट वो एक एडवर्स इम्पैक्ट था उनके कॉलोनियल रूल का. सो द करेक्ट आंसर इज चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट इज read the following statements. Okay, now these are the question of assertion and reason. These are the question from Sandeep Kar book. So first is assertion A. 1921 is regarded as the year of Great Divide. Okay. Reason is after 1921 the total population in India never declined. So assertion reason के question में क्या होता है, एक statement given होता है assertion और फिर नीचे एक रीजन गिवन होता है. तो हमें ये देखना है कि जो रीजन दे रखा है क्या वही रीजन है, इसी वजह से ये हुआ था जो एजर्शन के अंदर स्टेटमेंट है, क्या वो उसको अच्छे से डिफाइन करता है, वही रीजन था उसका. अगर था तो हमें बताना है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन उसका सही रीजन दे रखे हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो पहले तो हमें डिसाइड करना है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्या हमें दोनों स्टेटमेंट जो दे रखे हैं तो गिवन है वो दोनों सच है या झूठ है, क्या पहले वो सही बात बोल रहे हैं या नहीं. टेक इट एज स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज एज स्टेटमेंट 2. तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. और अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब हम आएंगे इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर. अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो फिर तो इन दोनों ऑप्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, फिर हमें आंसर देना है इन दोनों ऑप्शन में से, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा. सो अगर assertion ट्रू है तो हम ऑप्शन सी टिक करेंगे, अगर assertion फॉल्स है तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे. सो इन दिस केस बोथ आर ट्रू, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ट्रू है. सो अब हमें दोनों ए और बी में से आंसर करना है. अब हमें ये देखना है कि क्या रीजन जो दे रखा है वो सच में यही रीजन है, ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. उसका रीजन यही था, हमने देखा था अभी इन द लास्ट वीडियो, इन द रिसेंट वीडियो, डेमोग्राफिक कंडीशन. सो यस 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है, ये बात बिल्कुल ट्रू है. और ग्रेट डिवाइड हमने इसको क्यों बोला था, क्योंकि 1921 के बाद पॉपुलेशन कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई थी, वो राइजिंग फेज में थी. सो 1921 दो फेजेस को डिवाइड करता है, ये हमने वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया, फर्स्ट फेज एंड द सेकंड फेज. इफ यू हैव नॉट check the video, go and check the video, then you can come to this question and you will be able to answer this question very easily. So yes, option number A is the correct answer. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Wait. Option number A. Next is assertion. India could not develop a sound industrial base during the British rule. क्या इंडिया इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना पाया था, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस नहीं था हमारे पास ब्रिटिश रूल के अंडर. हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारा हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने ख़राब कर दिया था, तो हमारे पास एक इंडस्ट्रियल बेस तो नहीं था. ओके नाउ लेट्स लुक एट रीज़न. रीज़न दे रखा है, ब्रिटिशर्स फॉलोड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज विच लेड टू द राइज इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. राइज इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट ये गलत है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से तो हमारा हैंडीक्राफ्ट खराब हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, राइज नहीं हुआ था. सो रीजन इज नॉट ट्रू, सो रीजन इज फॉल्स एंड assertion इज ट्रू. सो ए एंड बी तो ऑप्शन हट गया, अब हमें आंसर करना है सी और डी में से. सो हमारे पास आंसर क्या बनता है, assertion हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. Next is assertion.
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम वेरी लो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ओके, ठीक है, ट्रू है। रीजन, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। लैंड सेटलमेंट सिस्टम तो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम थे, रोतवारी, महलवारी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज ट्रू कि वेरियस सिस्टम तो आए थे लैंड सेटलमेंट के। जमींदारी सिस्टम था जिसमें से एक, और इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा कम हो गया था, प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी। सो दोनों ही स्टेटमेंट सच है, ट्रू है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो द करेक्ट आंसर इज ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. Next is, read the following statements. Okay, assertion, the establishment of Suez Canal intensified Britain's control over India's foreign trade. सुइस कैनाल के खुलने के बाद ब्रिटेन की जो मोनोपोली थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे उनका कंट्रोल ज़्यादा हो गया था। यस, इट इज़ ट्रू। ये हमने देखा था इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के अंदर जब हमने सुइस कैनाल किया था। रीज़न, The Europeans no longer had to travel around Africa to reach India. सुइस कैनाल से एक डायरेक्ट ट्रेड रूट मिला था ब्रिटेन का इंडिया के साथ, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, अफ्रीका के चारों तरफ घूमने की जो नीड थी वो चली गई थी। उससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची थी, टाइम बचा था, ये सब हमने कवर किया था। सो यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो अब हमें आंसर करना है फर्स्ट टू ऑप्शन में से, और अब हमें देखना रीज़न सही है। यस, रीज़न सही है। इसी वजह से उनका जो कंट्रोल था वो ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन दोनों सेम है। असर्शन रीजन अगर आपको समझ में आ गया तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है। असर्शन रीजन में हमें रीजन देखना होता है कि क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इसमें हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है, जो हमने असर्शन और रीजन में भी किया है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, प्रायर टू 1921 इंडिया वाज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, सॉरी ट्रांजिशन। यस, इट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। स्टेटमेंट 2, फ्रॉम द ईयर 1921 onwards India's population never declined and recorded a consistent rise. Yes, it is true. सेकेंड फेज के अंदर कंसिस्टेंट राइज था, पॉपुलेशन कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई, इसी वजह से इसको हम सेकेंड फेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो ट्रू। सो लेट्स लुक एट ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। सेकेंड ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। सी ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। डी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। बहुत ईजी है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स, उससे इजीली आप ऑप्शन देख सकते हो, इजीली आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. Statement 1. During the British rule, there was huge export surplus due to excess exports. Yes, correct. Export surplus तो था. Second is, British government established a monopoly control over India's foreign trade. British government ने monopoly control किया था इंडिया के foreign trade पे, ये भी ठीक है, तो दोनों statement true हैं. So option number A is correct. Both statements are true. Next is, read the following statements carefully and choose the correct alternative. Statement 1. Commercialization of agriculture was coercively introduced by the Britishers. Yes, it is true. Commercialization, कैसा commercialization था? Forced commercialization. तो जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने, जबरदस्ती फार्मिंग कराते थे वो, commercialized farming. Statement 2. The aim of commercialization of agriculture was to support the British industry.
उनका एम क्या था, वो कैश क्रॉप क्यों कल्टीवेट करा रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, तो वो अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. So correct option is both the statements are true. That is option number A. Next is statement 1. Agricultural productivity was very low during the British rule. Yes, true. Statement 2. In absolute terms, there was growth in agricultural sector due to expansion of aggregate area under cultivation. हम एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर जाके देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एरिया, कल्टीवेशन का एरिया था, जो लैंड थी, वो इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से एग्रीगेट एरिया जो था, अगर हम सम टोटल में देखें तो वो एरिया कल्टीवेशन का बढ़ रहा था. इट इज ऑल्सो ट्रू. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1. जमींदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया. ओके, यस, करेक्ट. रेवेन्यू का सिस्टम ही था, उनको लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं उसको, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को, और जमींदारी सिस्टम. सेकेंड, zamindars were given full freedom to collect and keep the rent collected by them. Yes, जमींदार के पास पूरी फ्रीडम थी, वो जितना चाहे उतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, रेंट कलेक्ट कर सकते हैं, लगान वसूल सकते हैं, बस उन्हें फिक्स्ड रेवेन्यू जो है जनरेट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था. ये हमने जमींदारी सिस्टम के अंदर देखा था. आर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर सॉरी इट इज टू कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम. वो अपने पास रेंट कलेक्ट करके नहीं रख सकते थे, उनके पास फ्रीडम थी कि वो लगान वसूल सके, लेकिन वो अपने पास नहीं रख सकते थे, उन्हें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था. सो दिस इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1. Statement 1 is true and statement 2 is false. That is option number A. Thank you for watching till end and showing your patience with me. These are the 50 MCQs. We have completed our target. If you like the video, please share and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can get notified for further videos. Till then, keep studying. We will meet in the next video.